Assalamu alaikum student. I am your teacher Sobia Nadeem, economics teacher of class first year. In the previous lecture, we have started our chapter number 1, that is matter and scope of economics, and in this chapter we have covered three main definitions which are given by three different economists. Number 1 definition, which was given by Professor Adam Smith, and according to him economics is the science of wealth, which we have discussed in detail. And after that, the second one definition, which was given by Professor Marshall, and according to Professor Marshall, economics is the science of material welfare, which we have discussed in detail also. And after that, we have covered the third one definition, which was given by the modern economist, with his name is Robbins. ठीक है, according to him, economics is the science of scarcity and choices. After that, today we are going to do the comparison between Marshall definition and Robbins definition, and we have discussed this comparison in few points. Number 1 point is scope of the subject. ठीक है, according to Marshall consider only those activities as economic activities which concern only with material welfare of the man. As we discussed, according to his definition, कि मार्शल ने क्या अपनी डेफिनेशन में कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो मटेरियल वेलफेयर है, तो उसका जो सब्जेक्ट था, बेसिक कंटेंट जो था, वो डिपेंड करता है मटेरियल वेलफेयर पे. बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ही स्टडीड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन वेदर दे आर कंसर्न विद मटेरियल और नॉन मटेरियल वेलफेयर. ठीक है, तो रॉबिन्स ने चूँकि इसकी डेफिनेशन पे क्रिटिसाइज भी किया था, और उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज जस्ट नॉट ओनली द मटेरियल वेलफेयर. उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल बोथ वेलफेयर. ठीक है, तो दिस इज द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट, द सेकेंड पॉइंट इज साइंटिफिक अप्रोच. एंड व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच अकॉर्डिंग टू मार्शल? Marshall's definition in this regard is merely a classificatory definition. ठीक है, because it divides the economic activities of man into material, non-material and welfare categories. ठीक है, क्यों इसको साइंटिफिक कहा गया है, क्लासिफैक्ट्री? क्योंकि इसने तीन क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड कर दिया, मटेरियल, नॉन मटेरियल एंड वेलफेयर कैटेगरीज में. बट रॉबिन्स डेफिनेशन इज मोर एनालिटिकल एंड साइंटिफिक. ठीक है, रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी ज़्यादा एनालिटिकल थी, साइंटिफिक थी एज कम्पेयर टू मार्शल्स डेफिनेशन, बिकॉज रॉबिन्स डेफिनेशन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. ठीक है, रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास एनालिटिकल एंड साइंटिफिक दोनों अप्रोचेस को कवर करती है. क्यों करती है? क्योंकि उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सारे एस्पेक्ट्स को, सारी एक्टिविटीज़ को कवर किया है. द थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सैलिटी. ठीक है, Marshall's definitions has lack of universality because even two men have different idea of material welfare of the things. ठीक है, दो लोग होते हैं तो उनके पास मटेरियल वेलफेयर के डिफरेंट आइडियाज होते हैं, बट रॉबिन्स डेफिनेशन इज यूनिवर्सल. व्हाई यूनिवर्सल? बिकॉज scarcity is felt by everybody at any time, at any place. तो we can say that according to this point of view, Robbins' definition is more universal as compared to Marshall's definition. The fourth point we are going to discuss is comprehensiveness. ठीक है, तो according to Marshall, क्या Marshall ने कहा कि Marshall confined the definition of subject matter of economics into narrow boundaries. Why narrow boundaries? फिर बार बार बात एक ही आती है क्योंकि उसकी डेफिनेशन सिर्फ मटेरियल वेलफेयर ही को कवर करती है. But Robbins' definition is more comprehensive than Marshall's definition. Why? Because Robbins' definition gives a more scientific definition. ठीक है, ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन है, ज़्यादा एस्पेक्ट्स को कवर करती है, इसीलिए रॉबिन्स की डेफिनेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज कम्पेयर टू मार्शल्स डेफिनेशन. आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट इज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट. अकॉर्डिंग टू मार्शल्स डेफिनेशन के इकोनॉमिक्स जो है वो कंसीडर करती है बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंसेस. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन, रॉबिन्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करती है. ठीक है, तो क्या है कि
हमारे पास इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा जो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों सेंस को कवर करती है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सोशल एंड ह्यूमन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्शल एंड हिज फॉलोअर्स रिगार्ड इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस विच स्टडी नॉर्मल सोशल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मार्शल जो था उसने क्या था कि नॉर्मल सोशल ह्यूमन बींग्स को डिस्कस किया। ठीक है, but in the Robbins definition, all he's according to him कि they are ordinary of extraordinary। ठीक है, मैंस जो है वो ये तो ऑर्डनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, फॉर एवरीवन हैज टू फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इन दिस रिगार्ड रॉबिन्स पॉइंट ऑफ व्यू मे बी कंसीडर्ड अ बेटर वन देन मार्शल्स डेफिनेशन। ठीक है, मार्शल्स ने सिर्फ सोशली इसको कंसीडर किया, जबकि रॉबिन्स ने इसको कहा कि चाहे इंसान ऑर्डनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, उसको हर सूरत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, जिनको हमने डिस्कस किया, जिनको कंपेयर किया, एंड आफ्टर द कंपैरिजन वी कंक्लूड दैट रॉबिन्स डेफिनेशन इज सुपीरियर टू द मार्शल्स डेफिनेशन बिकॉज इट इज़ मोर साइंटिफिक, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर यूनिवर्सल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था जो हमने कवर किया है वो हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है मार्शल्स डेफिनेशंस का और रॉबिन्स की डेफिनेशन का। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे कवर करते हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर का रिकैप स्टार्ट करते हैं कि वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड द डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट वो हमने डिटेल्स डिस्कस कर ली, उनके मेरिट्स, उनकी डीमेरिट्स, उनके क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने सब डिस्कस कर लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो मार्शल्स डेफिनेशन और रॉबिन डेफिनेशन का कंपैरिजन डिस्कस किया। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका स्कोप कहाँ है, किस किस फील्ड में किस किस तरह इसको लेके चला जाएगा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इफ़ एनीबडी हैज़ सम क्वेश्चन यू कैन आस्क in the comment box or you can come to school to talk. Thank you.